Leo, hi. Welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for June 9th till the 15th. And I'll be looking at your recent past, current energies, and immediate future. And I'll close it off with a couple of cards from the universe. These are general readings, so they may not resonate for all of you. If they do, you can comment down this video below. And if you want a current personal reading with me, you can reach out to me on Instagram. And if you do, you can check out the link for that below if you want. Let's see, Leo, what do we have for you? हेलो लियो, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर दिस वीक. सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, चलिए देखते हैं. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियो. लास्ट वीक तो आपकी रीडिंग बहुत ही अलग थी लियो. 2 of Wands, King of Pentacles, Ace of Swords, Page of Swords, the Tower. Oh my God, again the Moon is the back of the deck. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ बेटर होगा, बट my God, Leo, you really need a healing. I'm telling you. आप अभी जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे बैक टू बैक आपको यूनिवर्स इंटरप्ट कर रहा है या फिर रियलाइज करवाना चाह रहा है किसी चीज़ से. डेफिनेटली किसी चीज़ का दुख डेफिनेटली हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा. लियो, योर एनर्जीज एक्चुअली ड्रेन्ड आउट. आई कैन सेंस इट. किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप. यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड ऑल्दो फाइनेंशियली यू आर स्टिल ओके, but you are in a fight or in the middle of a fight with someone, and regular continuous fights, arguments, misunderstandings, fightings, verbal fights, physical fights, abusing, or I can see the word insecurity, and then taking away your confidence, making you weak, or making you feel that you are weak. I can see all that happening. Okay, let's just start clarifying. I don't think that I should talk more about this right now. Let's just start clarifying. Let's see that what are you waiting for here, what are you looking forward to with 2 of Wands. Let's clarify 2 of Wands. 2 of Wands for Leo, what does it mean? What? Let's clarify. Let's clarify 2 of Wands. 2 of Swords, 8 of Wands, and the Hierophant again. Sorry, not again, but yeah, we have it. Very high chances someone is using some kind of a black magic or a spell on you, or to win over this situation. 9 of Swords. बहुत ही सॉलिड तरीके से ऐसा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस आपको लग रहा है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर टू लुक फॉरवर्ड दैट व्हाट हैपेंस. अगर आप सिंगल हैं तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर कि क्या होता है. यू वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, but you are not still very in an open mind, to talk to this person. And if you were in a relationship or in a marriage, you are definitely in continuous conversation with that person, online phone calls, messages, or in general, like or with the help of your mother or a female. And then you are stressed out, you are stressing out also over it. Let's see what do we have with Ace of Swords. Let's clarify Ace of Swords here. We need to clarify Ace of Swords. The Fool, 9 of Swords, and 4 of Cups. Back of the deck is the Emperor. So see, you are struggling very much, or you are working very hard to have a new beginning in your life. You are very much upset, very sad, and overthinking a lot. And somewhere I feel that there is something, or maybe your intuition is telling you that you should consider something or you should think about something, but you are not thinking. Someone is maybe keeping you awake all night,
हो सकता है आप रात भर जाग रहे हैं, आपका काफ़ी ज़्यादातर टाइम जागने में जा रहा है, रात में आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। आपका कहीं ना कहीं कुछ तो है आपके अंदर जो आपसे कह रहा है कि आपको इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, बट आप मुझे इस पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। कुछ तो है। दिस कुड बी फॉर अ लॉट ऑफ सिंगल्स, आई गेस। जो लोग सिंगल हैं बट रोमांटिकली अभी किसी का रिलेशनशिप में नहीं है, मे बी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं अपने, बट किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बहुत टाइम हो चुका है उनको। और या तो फिर वो सिंगल हैं, उनको किसी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको कुछ करना चाहिए, बट वो कर नहीं रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसा स्ट्रांगली लग रहा है। आपका ईगो शायद आपको रोक रहा है, या फिर आप ही खुद को रोक रहे हो। समथिंग इज स्टॉपिंग यू, या फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस से अब आपको लग रहा है कि मुझे इस तरीके से इतना इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आई शुड वेट। आप थोड़ा सा इन्फीरियर भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं। ओके, यू शुड टॉक। इफ देर इज एनीवन यू लाइक, यू शुड टॉक, लियो। लेट्स क्लैरिफाई द टावर हियर। आप एक जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे थे। इट कुड बी अ मैरिज और जस्ट अ रिलेशनशिप। तो फिर आपको डेफिनेटली इसमें शुरुआत करनी होगी, इसके लिए कुछ रास्ता निकालना होगा। यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू टेक आउट अ वे, लुक फॉर अ वे। लेट्स क्लैरिफाई द टावर। क्या है विद टावर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of cups and 6 of cups. Bottom of the deck is Queen of Swords. Definitely intervention of universe. Definitely यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है आपके लाइफ में, फैमिली में, आपके लाइफ में जो कुछ भी ख़राब चीज़ें थी या जो चीज़ें सही नहीं चल रही थी, उनको ठीक करने के लिए यूनिवर्स बीच में आ रहा है। जो कोई भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अब आपके एनर्जी को मैच नहीं करती, या फिर जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें यूनिवर्स आ रहा है बीच में। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू स्पीक टू यू आउट लाउड। चीख चीख कर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लियो, बहुत हो चुका, बहुत रह लिया इस तरीके से, अब और नहीं, अब नहीं। अब टाइम है कि अब अपने अंदर के इमोशंस को जगाओ। अपने एक पैसा पैसा बहुत कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत काम कर लिया, अब अपनी फैमिली लाइफ पे भी फोकस करो, या अपने अंदर की खुशियों पे फोकस करो, अपनी लाइफ की खुशियों पे फोकस करो, उनको प्रायोरिटी बनाओ। एंड यू डिज़र्व इट, यू शुड नो दैट यू डिज़र्व इट। आप ये सब डिज़र्व करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो लोगों के लिए रीडिंग्स हैं, जो लोग ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, और जो लोग सिंगल हैं बट वो डिज़र्व करते हैं प्यार, बट उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि वो करते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वो उस जोन में रह चुके हैं कि अब उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल सकता है। बहुत सारे लियोस को ऐसा लगता है, लेकिन उनको अपने ही पैटर्न्स को ठीक करना होगा, अपने ही लाइफस्टाइल को, अपने ही माइंडसेट को ठीक करना होगा, तभी तभी यूनिवर्स भी उनके सामने उन चीज़ों को हेल्प करेगा। अभी आपको यूनिकॉर्न्स भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, देखिएगा। जब हम यूनिकॉर्न्स आपके लिए मैसेज निकालेंगे ना, आपको खुद दिखेगा। लेट्स सी दैट, अगर मैं सही हूँ तो। आई एम श्योर। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू लियो फॉर दिस वीक। ये सब जो मैसेजेस आ रहे हैं लियो के लिए, प्लीज़ उसको अच्छे से लियो को गाइड करने के लिए यूनिकॉर्न्स, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप कुछ कार्ड्स निकालिए ऐसे, प्लीज़, लियो के लिए। लियो नीड इट। Whatever message Leo needs to hear, please give it to them. Let's see now. Service. Oh, service with an open heart is a key to satisfaction. Let me pull out one more. ये तो चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। ये आपके लिए एक रेमेडी के तौर पे भी हो सकता है, सर्विस वाला मैसेज। One more message for Leo. One message for their week ahead. हो सकता है आप इस फील्ड में हो सकता है आप मेडिकल लाइन में हो सकता है आप डॉक्टर हो। This message is for you.
King of the Unicorns. You are blessed with majesty, vision, and power. Let's see, let's clarify. First, service. The unicorns advise you to do that which satisfies your soul. The key is to let go of your own desires and serve others. Then you will find true happiness. Affirmation for you is I seek that which satisfies my soul. तो हो सकता है जब आप कुछ लोगों की मदद करेंगे, सर्विस करेंगे, तो आप अपने पेन को भूलकर आप भी एक खुशी को पाएंगे। फिर आप रियलाइज करेंगे कि असली खुशी लोगों की मदद करने में है, ना कि सिर्फ अपनी, है ना? चलिए, लेट्स सी व्हाट इज देयर विद दिस वन। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स. The king of the unicorns has an open heart, third eye, and crown. He is a mighty being, and this is a special card calling on you to stand in your power with dignity and majesty. Affirmation for you is I act regally. So, definitely blockage in your heart chakra, eye chakra, third eye chakra, and crown chakra. आपको इन तीनों को ही खोलने की ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ को वेलकम कर पाएंगे अपने लाइफ में, उस नई बिगनिंग को वेलकम कर पाएंगे लियो, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए आपका टावर कार्ड भी यहाँ पे आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि द मून भी क्लैरिफाई करता है कि काफ़ी ज़्यादा फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर काफ़ी ज़्यादा होपलेसनेस है किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर। आप जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट व्हाट इज़ द गुडनेस and what are the possibilities, what is basically universe wanting you to do is to be hopeful for the future, Leo. होप को जिंदा रखिए, उम्मीद को जिंदा रखिए कि वो ज़रूर आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। वेरी नाइस रीडिंग, मच बेटर दैन द लास्ट वीक वन. लास्ट वीक वॉज जस्ट bombarding you with energies. This one is also, but now universe wants you to take action, और वो आपको पुश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। आप कब समझेंगे, आप कब समझेंगी, वो टाइम बताएगा। So that was all for you for this week, Leo, and I'll see you guys in the next video next week. Till then, take care and God bless.